Jai Gurudev, dear students, children, we have completed two chapters, chapter number 1 and chapter number 2. So, in these two chapters, we studied about the families. Okay. In the first chapter, I have taught you about the extended family. Okay, all the family members, and in this chapter we have read the story of Subhash family, how they enjoyed in their life by living in a joint family. Okay, and under this chapter we have learnt about the two different families. One is small and nuclear family, and second is joint or big family. So how they enjoyed and love each other and cooperate and respect their elders. So all these things we have learnt in this family, and different relations also I have taught you under this chapter, chapter number 1. And in the chapter number 2, children, we have learnt about the family's change in size, means how the families change in their size, and how families grow in size or how its size decreases. So their size of the family changes with the birth of any baby or due to marriage of any person in the family. With these conditions, these two conditions, new member add in any family. So that's why family size can be changed. And after that, I taught you in this chapter about the animals also, that animals also take care of their babies, and many animals who give birth to their babies, they feed the animals with their milk. Okay, so under this chapter I taught you about two important terms and two important animals category. One are the viviparous. Viviparous are those animals who give birth to their young ones, means babies. And under this category you can take example of cat, dog, cows, buffaloes, monkey, donkey, and so many other animals also who give birth to their babies. And after that we have learnt about the birds also, insects also, and reptiles. Okay, and these are some animals who lay eggs. They are coming under the category of oviparous animals. Okay, so under this I have taught you about the eggs of birds also, that they are having hard and brittle shell, means easily they can break. So after that I taught you in this chapter about the biological parents who give birth to their own children and take care of them. They are called biological parents, means हमारे जो रियल मम्मी पापा होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, biological parents. And after that we have studied in this chapter the story of Mahesh and Savita and this girl Astha, who was an orphan girl, means ये अनाथ एक लड़की थी जो ऑर्फनेज में रहती थी और अनाथालय में रहती थी. एंड हाउ दीज husband wife, they adopted this girl and their family
became happy by adopting the child. Okay, so जिस बच्चे को कोई भी ऐसे पेरेंट्स अडॉप्ट करते हैं वो पेरेंट्स कहलाते हैं फॉस्टर पेरेंट्स, एंड वो चाइल्ड क्या कहलाएगा, फॉस्टर child. Okay, so children, and also in this chapter we have learnt that how the family size changes due to shifting. Means if anybody shift from one place to another or one city to another city because of his transfer, or we can say promotion, then also size of the family can be changed. So children, after completing these two chapters, we have completed the exercise parts also, as well as we have completed the question answers also of this chapter. So today we will start our chapter number 3. Okay, so already we have completed 2 chapters, so slowly we will proceed with this chapter. So third chapter is our organ system. So children, name of the chapter indicates that here we are studying about some system. You know children, हमारी बॉडी पूरी जो है वो एक मशीन की तरह है. ओके, एंड इट वर्क्स ऑल्सो जस्ट लाइक अ मशीन. लाइक मशीन हैज़ different पार्ट्स. ओके, इफ़ वी टॉक अबाउट अ सिंपल मशीन, एक जैसे आप साइकिल चलाते हो तो साइकिल इज़ अ सिंपल मशीन. ओके, एंड साइकिल हैज़ 2 tires, and after that these 2 tires, it has an handle, pedals, okay, seat, so chain also, with the help of that wheels can move. So all those parts are the organs of that cycle. ओके, सो इन द सेम वे, जैसे ही मैंने आपको साइकिल के डिफरेंट पार्ट्स बताए, ऐसे ही हमारी बॉडी के भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं. ओके, सो इन द जूनियर क्लासेस यू मस्ट हैव स्टडीड अबाउट द पार्ट्स ऑफ द बॉडी. जैसे लेग्स हैं, आपके आर्म्स हैं, देन फेस है आपका, हेड है, eyes, ears, all these are the parts of our body. तो जूनियर क्लासेस में तो बेटा आपने एक्सटर्नल ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा था. ये सारे होते हैं हमारे एक्सटर्नल ऑर्गन्स. एक्सटर्नल मीन्स आउटसाइड, विच आर विजिबल, दे आर कॉल्ड एक्सटर्नल ऑर्गन्स. बट इस चैप्टर में हम उन ऑर्गन्स की बात करेंगे. ऑर्गन्स मीन्स पार्ट्स. ओके, सो हमारी जो बॉडी है वो एक सिस्टम है, और उस सिस्टम के इंटरनल पार्ट्स के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि हमारी बॉडी के अंदर कौन से पार्ट्स हैं जिनकी वजह से हमारी बॉडी वर्क करती है. ओके, सो दिस इज़ द मेन motive of this chapter, are organ system. So let's read this first para. Human body is an amazing living machine in which several parts or organs work together for the proper functioning of the body. So children, you know that our body is a amazing machine. और कैसी मशीन है वो? लिविंग मीन्स बहुत ही
हैरान कर देने वाली एक मशीन है हमारी बॉडी, और जिसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं। पार्ट्स को ही हम ऑर्गन्स बोलते हैं। एंड सारे ही ऑर्गन एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से वर्क करते हैं, और इसीलिए हमारी ये जो मशीन है, मशीन जैसी बॉडी है, वो बहुत प्रॉपर फंक्शन करती है। ओके, सो इसमें हम एग्जांपल आपको दे सकते हैं। जैसे देखिए, आपकी बॉडी जो है उसमें आप डेली खाना डालते हो, मीन्स आप खाना खाते हैं, और वो जो फूड आप लेते हो वो आपके स्टमक में जाता है और डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। वो फूड डाइजेस्ट होता है। तो स्टमक का क्या रोल है आपकी बॉडी में कि वो आपका फूड जो है उसको डाइजेस्ट करना। ओके, फिर आप सांस लेते हो, आप ब्रीथ करते हो। तो ब्रीदिंग के लिए आपकी बॉडी के अंदर जो लंग्स होते हैं, okay, if you keep your hand on your chest, you can feel that your lungs move up and down again and again when we breathe. So they are lungs which are present in your chest cavity. Okay, so जो आपके लंग्स होते हैं वो आपको ब्रीथ करने में हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप ब्रीथ नहीं करोगे तो आप जिंदा नहीं रह सकते। ओके, सो दीज आर सम काइंड ऑफ सिस्टम्स विच वर्क in our body for proper functioning of the body. Okay, so in the next para, the human body is made up of tiny living units called cells. So बच्चों, हमारी जो बॉडी है वो बहुत ही छोटे छोटे, टाइनी मीन्स वेरी स्मॉल, लिविंग यूनिट्स की बनी होती है, जिनको क्या बोलते हैं हम? सेल्स। ओके, बहुत ही छोटे छोटे सेल्स जो हम अपनी नेक्ड आई से देख भी नहीं सकते। उसके लिए हमें स्पेशल टाइप का माइक्रोस्कोप चाहिए, और माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही हम इसको देख सकते हैं। तो हमारी बॉडी सबसे पहले कौन से छोटे छोटे पार्ट से मिलके बनी है? सेल से। ओके, so the cells of a similar kind join together to form tissues. So children, ये जितने भी सेल्स होते हैं, छोटे छोटे सेल्स जो हैं, वो जब एक ही टाइप के सेल्स एक साथ जॉइन हो जाते हैं, एक साथ इकट्ठे होके वो क्या बना देते हैं? टिश्यूज। मीन्स ग्रुप ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ सेल्स इज कॉल्ड टिश्यूज। एक ही टाइप के जो सेल्स होंगे और वो ग्रुप में अगर इकट्ठे प्रेजेंट हों और एक ही टाइप का फंक्शन परफॉर्म करें तो उसको बोलेंगे वो टिश्यूज हैं। ओके चिल्ड्रन, दीज आर न्यू वर्ड्स इन योर चैप्टर, बिकॉज before that you have not studied these kind of words. Okay, so try to understand what are the cells, what are the tissues. Okay, cells को explain करने के लिए मैं आपको एक और एग्जाम्पल दे देती हूँ। जैसे बच्चों, आपने देखा होगा किसी भी बिल्डिंग को बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, या जो मेसन और ये लेबरर्स होते हैं, ये क्या करते हैं? छोटी छोटी ईंटों को जोड़ते हैं सीमेंट और सैंड के साथ। ओके, सीमेंट एंड सैंड का मिक्सचर बनाते हैं और उसके सहारे ईंटों को आपस में जोड़ देते हैं। ओके, और ऐसे ही जोड़ जोड़ के वो क्या करते हैं? एक रूम बनाते हैं, फिर रूम से बिल्डिंग बन जाती है जब बहुत सारे रूम्स एक साथ बना लेते हैं।
तो ऐसे ही हमारी बॉडी भी बनी हुई है। जैसे बिल्डिंग में ईंटों को लगाया जाता है, ऐसे ही हमारी बॉडी में छोटे छोटे सेल्स होते हैं। ईंटें तो बहुत बड़े साइज़ की होती हैं, बट ये सेल्स बहुत ही छोटे साइज़ के होते हैं। ओके, सो इन लिविंग यूनिट्स को, क्योंकि ये जिंदा होते हैं और लिविंग थिंग्स में ही सेल्स प्रेजेंट होते हैं, तो इन लिविंग यूनिट्स को हमने क्या बोला है? सेल्स। और सेम टाइप के सेल्स जब एक साथ प्रेजेंट हों, उनके ग्रुप को हम क्या बोलेंगे? टिश्यूज। ओके, सो दीज टू वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। These tissues join together to form an organ. So children, cells के ग्रुप से क्या बने? टिश्यूज़। और बहुत सारे टिश्यूज़ जब एक साथ जॉइन होके और एक ऑर्गन बना देते हैं, वो मीन्स एक हमारी बॉडी का पार्ट बना देते हैं। ओके, so these the organs join and work together to form an organ system. फिर ऑर्गन्स जब बन जाते हैं, हमारी बॉडी के जब पार्ट्स बन जाते हैं, तो सेम फंक्शन करने वाले जो पार्ट्स होते हैं उनसे मिलके क्या बन जाता है? ऑर्गन सिस्टम। Okay, so children, with the help of this flow chart also you can understand this formation of the body. अब देखिए, जैसे सबसे पहले क्या बने? सेल्स। सेल्स आर वेरी स्मॉल लिविंग यूनिट्स ऑफ आवर बॉडी। और सेल्स के सिमिलर ग्रुप, एक जैसे जो सेल्स हैं उनके जब ग्रुप बन जाते हैं तो वो ग्रुप को हम क्या बोलेंगे? टिश्यूज़। एंड टिश्यूज़, जब बहुत सारे टिश्यूज़ एक साथ मिल जाते हैं तो वो क्या बना देते हैं? ऑर्गन। ऑर्गन मीन्स हमारी बॉडी का कोई भी पार्ट। एंड कुछ ऑर्गन मिलके एक ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं। ओके, और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम, जैसे आपके डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, या और भी बहुत सारे सिस्टम हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ये सारे सिस्टम मिलके और क्या बना देंगे? हमारी बॉडी। ओके, सो आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ मैनी काइंड ऑफ सिस्टम्स। अंडरस्टूड? आपकी बॉडी के अंदर हर वर्क करने के लिए एक डिफरेंट सिस्टम है। अगर आपका फूड डाइजेस्ट करना है तो उसके लिए आपकी बॉडी का ये डाइजेस्टिव सिस्टम है। ओके, और अगर आपकी बॉडी में, पूरी बॉडी में फूड सप्लाई करने का काम हो या आपकी बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम हो, तो वो हमारा ब्लड का जो सिस्टम हमारे ब्लड का होता है, उसके थ्रू ये पूरा एक सिस्टम फॉर्म हो जाता है। तो ये इसका वर्क क्या है? हमारी बॉडी में फूड एंड ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना और उसके साथ साथ वेस्ट मटेरियल्स को भी कलेक्ट करना। अंडरस्टूड? सो दिस इज़ अनदर काइंड ऑफ सिस्टम। फिर उसके बाद जैसे आप ब्रीद करते हैं, तो ब्रीद करने के लिए आपको लंग्स की ज़रूरत होती है और आप नोज़ से सांस लेते हैं और फिर ये पूरी जो एयर है वो आपके दोनों लंग्स तक पहुंच जाती है और इससे ऑक्सीजन जो गैस इसमें प्रेजेंट होती है वो हमारे ब्लड में चली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है जो हमारे ब्लड में वेस्ट मटेरियल की फॉर्म में होती है वो फिर से हमारे ब्लड से वापस आके और इन लंग्स से वापस होके और नोज़ या माउथ के थ्रू बाहर आ जाती है। तो दिस इज़ ऑल्सो
another kind of system. सो हमारी बॉडी में ऐसे बहुत सारे सिस्टम्स सेपरेटली प्रेजेंट होते हैं. अंडरस्टैंड? सो दीज आर कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम्स. जैसे ये पूरा एक सिस्टम है. फिर मैंने आपको बताया कि डाइजेस्टिव सिस्टम भी एक सेपरेट सिस्टम है. बट दीज ऑल द सिस्टम्स आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी. So that's why our body is just like a living machine, amazing living machine. Okay, so children, we are studying about the organ system. So यही सारे systems को हम क्या बोलेंगे? Organ system. जैसे हमारी body से waste रिमूव होने होते हैं तो वो हमारी किडनी जो है, हमारे ब्लड में जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, किडनी उनको सेपरेट आउट कर देती है ब्लड से. हमारा ब्लड प्योरीफाई कर देती है और यूरिन की फॉर्म में जो वेस्ट मटेरियल होते हैं वो हमारी बॉडी से रिमूव हो जाते हैं. ओके, सो दिस इज़ ऑल्सो अनदर काइंड ऑफ सिस्टम. सो आपने देखा है कितने अमेजिंग सिस्टम हैं हमारी बॉडी के अंदर जो सेपरेट वर्क अपना परफॉर्म करते हैं. तो इन्हीं सारे सिस्टम्स के बारे में हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे. सो ये जो ऑर्गेनाइजेशन मैंने अभी आपको बताई कि सेल से टिश्यू बने, टिश्यू से ऑर्गन बने और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बने. ओके, तो ये मैं आपको एक डाइजेस्टिव सिस्टम की एग्जांपल से एक्सप्लेन कर रही हूँ. यू कैन सी हियर चिल्ड्रन, सपोज ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है. ओके, सो दिस इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ सिस्टम. तो ये सिस्टम में डिफरेंट ऑर्गन से ये बना हुआ है. सबसे पहले तो स्मॉल टाइनी सेल्स से मिलके टिश्यूज बने. ओके, तो एक टाइप के जो सिमिलर टाइप के टिश्यूज हैं वो क्या करेंगे, हमारी इस फूड पाइप को बनाएंगे जिसका नेम इन्होंने यहाँ लिखा है ईसोफेगस. इट इज़ अ फूड पाइप. ये पाइप जैसी एक स्ट्रक्चर होता है जो जब हम माउथ में अपने फूड लेते हैं तो आफ्टर मेस्टिकेटिंग और आफ्टर च्यूइंग फूड कम्स इनटू दिस फूड पाइप. तो ये फूड पाइप क्या है? ये भी एक ऑर्गन है, ये भी एक पार्ट है हमारे ऑर्गन सिस्टम का. पूरे सिस्टम का ये एक पार्ट हो गया. ओके, माउथ इज ऑल्सो वन ऑफ द पार्ट ऑफ दिस सिस्टम. और उसके बाद ये स्टमक है. स्टमक में फूड आ जाता है तो स्टमक इज ऑल्सो वन ऑफ द सिस्टम. ऐसे वन ऑफ द ऑर्गन. सो चिल्ड्रन, ऐसे डिफरेंट ऑर्गन्स, जैसे माउथ एक ऑर्गन हो गया, फूड पाइप एक ऑर्गन हो गया, देन स्टमक एक डिफरेंट ऑर्गन हो गया. उसके बाद यहाँ पे फूड आ जाता है डाइजेशन के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन में. ये देखिए लिखा स्मॉल इंटेस्टाइन. ये स्मॉल इंटेस्टाइन भी एक ऑर्गन हो गया. देन फूड आफ्टर डाइजेशन कम्स टू द लार्ज इंटेस्टाइन. तो लार्ज इंटेस्टाइन भी एक ऑर्गन हो गया. सो इसमें आपने देखा कितने सारे ऑर्गन्स एक साथ वर्क कर रहे हैं. ओके, सो ऑल दीज ऑर्गन्स they work together, join together to form a kind of organ system. So सारे जितने भी organs हैं उन्होंने मिलके क्या बना दिया, एक organ system बना दिया which is called digestive system. ओके, तो इस सिस्टम को हमने नेम क्या दे दिया, डाइजेस्टिव सिस्टम, क्योंकि ये क्या करता है, हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है. ओके, सो चिल्ड्रन, होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज द एन ऑर्गन सिस्टम. सो आफ्टर दिस, डिड यू नो
मैं आज यहीं तक रीड करूँगी और यहीं तक आपको एक्सप्लेन करूँगी, और ताकि आप अच्छे से इन छोटे छोटे जो आपके न्यू वर्ड्स हैं इस चैप्टर में उनको आप समझ लो और बहुत अच्छे से उनको आप लर्न भी कर लीजिए. ओके, so what is written? Did you know? In did you know always they are writing good information and special information. So the size of a cell is so small that you cannot see it with a naked eye. Children, हमारे जो सेल का साइज़ होता है वो इतना स्मॉल होता है कि हम उसको अपनी नेक्ड आई से, मीन्स हम उसको अपनी आईज से नहीं देख सकते. अ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड माइक्रोस्कोप इज़ यूज्ड टू ऑब्जर्व देम. तो बच्चों, हमें इन सेल्स को देखने के लिए एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं जिसको हम बोलते हैं माइक्रोस्कोप. ओके, ये माइक्रोस्कोप एक छोटी सी मशीन होती है जिसमें हम एक ग्लास के पीस के ऊपर, छोटा सा एक ग्लास का पीस होता है, उसके ट्रांसपेरेंट पीस, उसके ऊपर हम अपने सेल्स को रखते हैं और थोड़े से सेल्स लेके अपनी बॉडी के और उनके ऊपर स्प्रेड करके रखते हैं और फिर हम उनका साइज एंड शेप देख सकते हैं. ओके, सो दिस वर्ड इज़ ऑल्सो न्यू फॉर यू. तो जिससे हम अपने सेल्स को देख सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? उस छोटी सी मशीन को माइक्रोस्कोप. ओके, सो चिल्ड्रन, ये माइक्रोस्कोप क्या करता है? ये किसी भी चीज़ के साइज़ को, जैसे हमारे सेल्स हैं तो वो हम अपनी आईज से तो नहीं देख सकते, बट जब हम माइक्रोस्कोप के थ्रू देखते हैं तो उनका साइज़ 10 टाइम्स ज़्यादा बड़ा हो जाता है. ओके, मीन्स अगर हमारे सेल का साइज़ मान लो एक डॉट जितना है तो ये डॉट को 10 टाइम्स बढ़ा के आप समझ सकते हो कि इस डॉट को अगर हम 10 टाइम्स इंक्रीज़ कर दें तो उसका साइज़ इतना बड़ा हो जाएगा. और जब इतना बड़ा साइज़ हो जाएगा तो वी कैन सी ईजीली द स्ट्रक्चर विच आर प्रेजेंट इनसाइड आवर सेल, और we can see the size or shape of our different cells of the body. So this is the main work of microscope, क्योंकि ये किसी भी चीज़ के साइज़ को 10 टाइम्स इंक्रीज़ करके हमको दिखाता है, 10 टाइम्स बड़ा करके दिखाता है. ओके, सो चिल्ड्रन, फॉर टुडे दिस मच इज़ एनफ. We will complete this chapter very slowly. Daily I'll explain you one system, because in this chapter so many organ systems are there, and all these organ systems we will study slowly so that you can understand properly, because these all the things are important for you for your next classes also. In your higher classes you will study about these systems in more detail. Okay, so in this class you should understand what are these kind of systems and how they are made up of. So Jai Gurudev to all of you.